अब आएंगे हम एंटी पावर्टी मेजर्स। इन्हें निर्धनता यानी गरीबी की रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। रिमूवल ऑफ पावर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी. The government is based broadly on two planks. First, promotion of economic growth, और second है targeted anti-poverty programs. Over a period of 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Poverty estimates reach were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. The higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. The poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Growth in the agriculture sector is much below expectations. This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 aims to provide 100 days of wages employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion. One-third of the proposed jobs have been reserved for women. The share of ST women person days in the scheme are 23%, 70% and 53% respectively. The average wages have increased from 65 in 2006 to 7 to 130 in 2013 and 14. Prime Minister Rozgar Yojana is another scheme which was started in 1993. This aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. There are help in setting up small businessmen and industries. Rural Employment Generation Program has launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. Swarojgar Jayanti Gram Swarojgar Yojana was launched in 1999. The program aims at bringing the assist poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. Another important scheme is Antyodaya Yojana, about which you will be reading more in the next chapter. The results of these programs have been mixed. One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. There has been a lot of overlapping of schemes despite good intentions. The benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. भारत में गरीबी की रोकथाम भारत की विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति के दो कारक हैं,
दो उद्देश्य हैं, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भरता से ही। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त 30 वर्ष की अवधि के दौरान पृथ्वी की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध रहा है। आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके हैं। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है जो कि कृषि पर आश्रित रहता है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इसमें 18 से 60 साल के अकुशल श्रमिक जो कि बेरोजगार है, आवेदन करने पर उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें रहने के स्थान से 500 किलोमीटर की दायरे में ही कार्य दिया जाता है। अगर वहाँ से दूर है तो उन्हें आने जाने का किराया यानी यात्रा भत्ता दिया जाता है और अगर 15 दिन के अंदर उन्हें काम नहीं दिया जाता है या नहीं मिल पाता है तो उन्हें मजदूरी का 1/3 भाग भत्ते के रूप में, महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% रहता है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर उनकी मजदूरी 132 रुपये और वर्ष 2013-14 में कर दी गई थी। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा 281 रुपये प्रतिदिन जैसे कि हरियाणा के श्रमिकों के लिए और 168 रुपये प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना भी कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते देने का प्रावधान है। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू कर दिया गया है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल श्रमिक यानी वो ट्रेन नहीं है पर उन्हें काम की ज़रूरत है, शारीरिक काम करने के इच्छुक हो। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
10 से 25 योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है।